Okay. So am I audible clearly, loudly to everyone? Yes, sir. Yes, sir, you are Okay. audible. Okay, and the screen is also visible now, in which the question number 11, that is write a C program to solve quadratic equation. Yes, sir. Visible. Okay, okay. Yes. So there are a lot of questions, right? And time is, you know, that the short, and we have to cover the logic. So today, without wasting any single time, we are going to see the solution and logic directly, right? And let's discuss that such kind of question, how you can solve it, right? So basic terminology you have to clear. If you have clear some basic terminology, that the quadratic equation consisted of like the general form ax square plus bx plus c, and quadratic equation generally contains two roots, and the complete two roots are dependent on two concepts. The two concepts are its discriminant, right? And I hope you know the basic concept of discriminant. The basic crux of solving this equation is you have to calculate the value of b square minus 4ac. This is called as discriminant part of solution for the given quadratic equation. In one case, it can be greater than 0. In one case, it can be equal to 0. And in any case, it can also less than 0. So can anybody tell me what are the significance of all these three discriminant part solution? Because your discriminant part should look like this, or your discriminant part solution might be like this. What is the significance of this one? Anybody can tell? If discriminant is greater than 0, then two real roots, Yes. and if equal to 0, then two equal roots. If less than 0, then imaginary number. Okay. And what about less than 0 in that case? No real root exists. Roots are imaginary. 107 is we have admitting continue admitting 110, what you can say. Yes. Huh. So yes, so if you are having this part b square minus 4ac greater than 0, in that case your solution will be real solution you are going to get. And if you are having b square minus 4ac equals to 0, then your solution would be equal. And if you are having b square minus 4ac less than 0, it means that the solutions is imaginary, right? Now this is the discriminant approach. You have to just calculate the discriminant part, right? So what our approach would be, how you are going to solve this part, right? So basically you have to explain the logic of this question to the interviewer in such a manner that we have created some variables like a, b, c, discriminant, or root 1 comma root 2 real part and imaginary part को हमने image part is the variable name of it, right? And you can say that the data type of all these is double, right? Because the roots might exist in any case, right? If it is imaginary, we have to write it imaginary part. If it is a real, we have to write its real part. So first statement that is going to work, that we are asking user itself that please enter coefficient ABC. As you know, the equation is like ax square plus bx plus c equals to 0. So we are asking user itself that kindly put the value of a, b, and c, and the complete solution will be depend on that, right? So ABC value we are going to take from user. Just after that, we are going to store all that values at the address of A, at the address of B, and at the address of C. After that, we are calculating discriminant, that is b square minus 4ac. As I told you, b square minus 4ac we are calculating, that is called as discriminant while solving quadratic equation. And we are comparing the value of b square minus 4ac, which is stored in the variable discriminant. If it is greater than 0, then root 1 would be, root 1 is our one variable and root 2 is another variable.
root 1 would be minus b plus square root discriminant divided by 2a. You all know the exact solution is minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, right? So similarly, we have written minus b. For root 1, we have added 1. This square root is already a defined function in math.h header file. So we have included directly this function, and we have used b square minus 4ac's direct value from the variable called discriminant, and we are dividing it with 2a. We have all values b, a, c, and discriminant. Discriminant will be calculated here itself. Thereafter, root 2 will be calculated, and the respective value of root 1 and root 2 is going to return like root 1 comma root 2. But if discriminant equals to 0, it means that the value of b square minus 4 is 0. In that case, the roots will be real and both the roots will be equal. So we have written here the crux, that is root 1 equals to root 2, and both's value will be minus b divided by 2a, because it itself is a 0. In that case, minus b divided by 2a. Both the roots will be there, and we are going to simply print that line. Just after that, if in many cases it might happen that b square minus 4ac will be less than 0. In that case, the imaginary part would be look like square root minus discriminant divided by 2a, and real part would be minus b divided by 2a. And we are going to write the root 1 and root 2 respectively like this. First, real part would be written. Thereafter, normally this I represent with the imaginary part is going to return like this, right? And this is going to be written with the help of double data types, right? The data type is double. So this is how your logic of solving quadratic equation is going to work, right? I hope this is clear to everyone. Is this solution is clear to everyone? All the solution you are going to get in PDF form, so don't worry about it, right? Just try it on yourself and try to answer all the question one by one. Okay, so let's go for the next one, and it is very important question. It was asked in TCS 2022, and as well as it was asked in Cognizant. The question is, write a C program for Floyd's triangle. You have to write a C program for Floyd's triangle, correct? So the thing is that before writing directly the program of Floyd's triangle, you have to know that what exactly Floyd triangle is. How many of you know that this is the definition of Floyd's triangle? How many of you know the basic definition of Floyd's triangle? Okay, let's see. Here itself a definition is written for the purpose that you can get. The Floyd's triangle is a right angled triangle, right? The Floyd's triangle is a right angled triangle like this. And the functionality is that it contains consecutive natural numbers. It contains consecutive natural numbers. Consecutive means 1, 2, 3, 4, 5, 6 in continuous manner, like 8, 9, 10 and up to n. Whatever we are going to put n, up to n, it is going to print. In Floyd's triangle, the number starts with 1 in the top left corner. It means that this is the top left corner. This is the top left corner. And here your first number, that is 1, is going to be written. And then it consecutively filling the defined rows through the numbers. If it is row 1, one number will be printed. If it is row 2, the next two numbers, that is 2 and 3, is going to fill. In row 3, next 3 numbers, that is 4, 5, 6. In row 4, next 4 numbers, that is 7, 8, 9, 10, and so on. Whatever is the number of row, that much next consecutive numbers, next consecutive natural number is going to be printed there, right? For example, suppose we have defined 5 rows in Floyd's triangle, it generates the following pattern in increasing order. And you can see this pattern, right? Now, our target is to write a logic for it. How many of you can solve that? What logic it would be there?
How many of you can think? Try to brainstorm that, sir, this would be the solution, or that this सर can. दो लूप आएंगे Okay. Okay. सर। So, जो दूसरा लूप रहेगा वो पहले लूप के ith इंटीजर तक चलेगा। very good. There. बस सर फिर एक काउंट नाम का फंक्शन बनेंगे सीधे, फिर नंबर एडिशन हो जाएगा हर तरफ। Okay, so actually when we are going to break the line, at that time from which number we have to start, how to settle that point? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? Yeah, just say, let's say after this line we have break here, right? Let's say after second row we are breaking it and we are moving to new line, right? Then Yes, while sir. moving to the new line, how this next number will be going to means in the next row, let's say if it is a row number 3, how compiler is going to know that what should we have to write here, from where we have Sir, to start? basically we have a two routes. First route where our integer is I, and another route our integer is j. Mhm. So I is from 0 to 4, and j is basically depends on I. And initially I is 0, so j is goes to 0. No. Okay, I is goes exactly. to j plus Don't 1, worry I about plus it. 1, I plus 1. So it's basically in first. Okay, you are going right that दो loop लगेंगे, and you are getting exactly right. You are answering in terms of star pattern, pyramid pattern, right? You are Yes, sir. answering जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये जो स्टार पैटर्न बनाए थे ना, इस तरीके से, तो इसमें यही होता है कि इस तरीके का जो हमने स्टार पैटर्न पिछले लेक्चर में किया था कि वन रो है तो जितना नंबर रो है उतने टाइम फर्स्ट लूप चलेगा, सेकेंड लूप चलेगा, सेकेंड लूप डिपेंड करेगा पहले लूप पे, एंड एट दैट टाइम प्रिंटफ फंक्शन इज गोइंग टू वर्क। और अगले में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वाले में अगर आपका रो का नंबर 2 हो जाएगा तो जो नीचे वाला लूप रहेगा, बॉटम साइड लूप, इज डिपेंडेंट ऑन अपर साइड लूप, और 2 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे। Similarly, it is going to work, right? But here the difference is that हमको स्टार प्रिंट नहीं करना है, we have to print consecutive numbers, और वो भी एक बार एक आ गया तो अगला 2 3 होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा, एंड सी द वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन कि ये कैसे वर्क करने वाला है, how this solution is going to work. Yes, you can use static count method also. So see here, initially we have included the header file, you know the basic concept of C programming language. Thereafter main function onwards we are starting, and we have declared several integer variable including num, I, j, k, and initially this k equals to 1. See here, very important concept. Initially one extra variable with the name k, you can take this variable with any name, p, q, r, s, t, whatever, but initially we have assigned it 1. What is the purpose? The purpose is that in the leftmost corner of this triangle, at the first position we have to write 1, and with the help of this variable k, we are going to write the next consecutive numbers like this with the help of this variable k. That is why the significance of k is there, right? Now next we are asking the user enter a number to define rows in Floyd's triangle. We are asking user themselves that you just tell that till which row you need to print Floyd's triangle. So whatever user is going to enter, that is going to be stored at the address of num. Let's say user say till 5. It means that in Floyd's triangle, row 1, row 2, row 3, row number 4, and row number 5, this should be completely filled. It means that 7, 8, 9, 10, and 11, 12, 13, 14, and 15, it's going to be filled in our Floyd's triangle, right? It doesn't mean that कि अगर आपने 5 बोला है तो 11 तक ही प्रिंट होगा या 12, नहीं. अगर रो नंबर 5 है मतलब 15 कंप्लीटली प्रिंट होना चाहिए, राइट? सो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने यूजर से नंबर लिया और कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए. नाउ हम क्या कर रहे हैं, आउटर लूप को डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज के कंपैरिजन में. I equals to 1, I is less than equals to num, I plus plus. Num is nothing but यूजर से हमने पूछा था कि आपको फ्लॉयड्स ट्रायंगल में कितने रोज चाहिए, तो जो जितने रोज यूजर को रिक्वायर्ड है उसका डेटा नम में स्टोर्ड है. इट मींस दैट दिस फॉर लूप इज गोइंग टू वर्क नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ रोज यूजर देने वाला है उतना टाइम ये वाला जो आपका रो वाला लूप है इट इज गोइंग टू वर्क. उसके बाद ये वाला जो लूप है आपका, अगेन यू कैन सिंपली सी दैट j equals to 1,
j is less than equals to i j plus plus, ये अगेन i पर डिपेंड है। तो लेट्स से इनिशियली i का वैल्यू क्या है 1, यू कैन सी इनिशियली i का वैल्यू है 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ num, जो भी यूजर ने इनपुट दिया है, लेट्स से द वैल्यू ऑफ num इज 5 एंड thereafter you can simply see j equals to 1, the value of j equals to 1, and the next one is comparison. J is less than I, j is less than or equals to I, that is 1 is less than equals to 1, yes it is true। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये इनर लूप वर्क करेगा और इसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, %2d k प्लस प्लस। इट मींस दैट k का इनिशियल वैल्यू क्या था, यू कैन सी हियर 1, तो एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर 1 is going to print, and this plus plus means post increment, it means that post increment operator, matlab once it is going to print 1 and after that the value of k is going to change from 1 to 2 because of this post increment, it is going to work after execution of this printf statement, okay। After that slash n is going to work, now after that the value of j is going to be post incremented and it becomes 2. In this case 2 is less than equals to num, it get failed, so if it is get failed j is less than equals to 2, in that case printf slash n line would get changed, and in next line if line get failed we are again here, now the value of i is going to increment and I becomes 2, and if I will become 2, again this for loop of inner for loop, that is the inner for loop is going to initiated and this is going to work 2 times। Now in that case you can simply see initially we are having k's value is 2, so in first case ये वाला जो लूप है आपका ये ट्रू हो जाएगा और k का वैल्यू अभी 2 है तो नेक्स्ट वैल्यू 2 प्रिंट होगा, उसके बाद वापस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 ट्रू होगा तो k पोस्ट इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 3 और अगला वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद k का वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 4, करेक्ट। नाउ जब k का वैल्यू 4 होगा तब ये क्या होगा, ये वाला फॉर लूप हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि j का वैल्यू उस समय 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 2 नो फॉल्स, तो अगेन हम i के लूप पे जाएंगे और 1 बाय 1 ये वाला हमारा पैटर्न चलता रहेगा एंड एट द लास्ट जब हमारा रो का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब ये वाला i लूप भी फेल हो जाएगा एंड सिंपली यू आर गोइंग टू सी द कंप्लीट फ्लोइड ट्रायंगल लाइक दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Excuse me, sir. यस। So why we use here %2d? %2d का मतलब है कि जैसे ये लिखा आपने यहाँ पर 2, आपने यहाँ क्या लिखा 2 और यहाँ लिखा 3, तो 2 और 3 के बीच में जो स्पेसिंग है उसको लिखने के लिए 2 लिखा है, मतलब 2 और 3 के बीच में 2 स्पेसेस होने वाली है। अगर आप इसकी जगह %3d लिखोगे इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में 3 स्पेस आएंगे, मतलब क्लैरिटी के साथ दिखे आपको, आया समझ में? सर %d से भी कर सकते हैं बट उसमें स्पेस कम हो जाएगी फिर, है ना? हाँ %d लिखोगे तो वो बिल्कुल आपको चिपके चिपके दिखेंगे ऐसे। ओके, क्लियर? ओके sir, these are questions and solutions of yeah I will provide the soft copy of complete after completion of the session, आपको पूरा soft copy solution के साथ में दूंगा, ओके नवीन? Okay sir। ओके so question number 12 सभी को क्लियर है? Yes sir। Okay, Yes sir। so let's move to the next, that is question number 13. Write a C program for Pascal's triangle. Now इससे पहले हमने Floyd's triangle डिस्कस किया है, now today we are discussing Pascal's triangle, और इस टाइप के क्वेश्चन you can expect in companies like Wipro or the companies which is working on the operating systems, so they might ask such kind of question at the initial level of programming skills, right? So let me introduce you with the Pascal's triangle property. The property of Pascal's triangle says that it is a triangular array of binomial coefficient. आपने binomial coefficient algorithm mathematics में पढ़ी होगी, I hope might be in class 10th or 11th or 12th, right? Binomial algorithm हम पढ़ते हैं, correct? तो in Pascal's triangle each number is the sum of the two numbers directly above it. Here we will write a Pascal triangle program in C programming language, और आप इधर देखोगे तो initially ये 1 है and this 1 is nothing but sum of above 1, तो above 1 अब इसके ऊपर सिर्फ एक 1 है तो 1 is nothing but 1 और इसके ऊपर भी सिर्फ एक 1 है तो ये 1 as it is है। Now इसके बाद आप देखोगे तो Pascal triangle में क्या होने वाला है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं it is going to remain same, और ये 2 क्या है, it is just the sum of two numbers directly above it. This 2 is 1 plus 1. Similarly, ये 1 already ऐसा रहेगा,
but this 3 is because of 1 plus 2 and this 3 is because of 1 plus 2. Thereafter this 4 is because 1 plus 3, this 4 is because of 1 plus 3, and this 6 is because of 3 plus 3. Getting it? So this is this pattern, this triangular array, this kind of triangular array is called as Pascal's triangle. This kind of triangular array is called as Pascal's triangle. Now आप 2 मिनट सोचिए, just apply brainstorming guys, कि इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे बनाने वाले हैं, करेक्ट? क्योंकि it is a very important kind of questions and very basic level question, right? But ये intermediate level में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अगर आपको पास्कल ट्रायंगल का प्रोग्राम लिखना है, मैं बिल्कुल सी प्रोग्राम की बोल रहा हूँ, लेकिन इफ यू आर कंफर्टेबल इन पाइथन यू कैन राइट द मेन लॉजिक, आपको लिखना है, पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज जावा, यू कैन यूज सी, नो वरी, बट एनी लैंग्वेज का यूज करके जस्ट गिव. और अगर फिर भी नहीं बन रहा है, बोले सर लॉजिक बना सकते हैं, प्रोग्राम बनाने में दिक्कत आएगी, तो एटलीस्ट गिव मी एल्गोरिथम इन चैट सेक्शन कि सर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन हम एल्गोरिथम तो बना पाएंगे कि पहले ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस. तो 2 मिनट आप सभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसके ऊपर सोचें, बिकॉज until and unless you are going to work over the problems it is not going to be beneficial for you, right? So आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन मेरे पास 500-600 से ज्यादा क्वेश्चन है, बट 500-600 क्वेश्चन क्लास में नहीं हो सकते. यू कैन बाय डिफॉल्ट यू कैन थिंक ना कि 500-600 क्वेश्चन हम डेफिनेटली नहीं कर सकते, इतना टाइम वर्कशॉप में हमारे पास होता नहीं, करेक्ट? तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रॉब्लम्स में आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम दूंगा और उस असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप वो सॉल्व करेंगे. लेकिन ये जो हम पेसअप कर रहे हैं, इसको ये आइडिया लगने वाला है कि कैसा आपका पैटर्न रहने वाला है, कैसा आपका लेवल रहने वाला है, और जब आप इस टाइप के प्रोग्राम का उधर आंसर करोगे कंपनी में, so how you have to explain them, what should be your strategy and what would be your approach to explain such kind of problem. So you can try and try to answer it, that क्या algorithm आप use करोगे और आपका approach क्या होने वाला है. Okay. So everybody doing, आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो? just try to implement the logic. Switch on that button. Okay, so I hope you all are trying on it. Yes sir. Okay, just think few seconds मतलब कुछ सेकंड और दे रहा हूँ, आप सोचिए इस प्रॉब्लम के बारे में, बिकॉज ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको डायरेक्टली आ गया एंड लेट्स से अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है, तो कंपनी आपको ये पूछना चाहती है कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हमने दे दिया जो एट द सेम टाइम आपको आता नहीं है, उसका लॉजिक प्रोसीजर पता है लेकिन कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, प्रोसीजर मतलब कि ये आपका प्रोसेस है, ये आपका प्रोसीजर है, लेकिन आपने कभी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम नहीं किया है, तो एट द इंस्टेंट आप क्या आंसर दोगे, एट द सेम इंस्टेंट आप क्या आंसर करने वाले हो, उनको ये भी मैटर करता है. क्योंकि लेट से कंपनी बहुत सारे क्वेश्चन, कंपनी एचआरस को पता है, वो कोई पहली बार इंटरव्यू नहीं रहे, राइट? दे स्पेंड देयर होल लाइफ, 25-20 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको पता है कि क्या क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं, क्या बच्चों को आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन वो आपको एट द इंस्टेंट देंगे जो उनको पता है कि ये आपको नहीं बनेगा, लेकिन वो आपको जस्ट मेंटेलिटी चेक करना चाहते हैं कि क्या ऐसे प्रॉब्लम देख के आप घबरा जाते हो, क्या आप एकदम मतलब अननेसेसरी स्टफ्स करने लग जाते हो, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, या आप कॉन्फिडेंटली होके उसका लॉजिक बनाने की उधर कोशिश करते हो. तो वो बॉडी लैंग्वेज आपका चेक करते हैं, राइट? तो हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट ट्रिप्स और ट्रिक्स के साथ वहां पर बिहेव करना है, राइट? ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी बिहेवियर उधर क्रिएट करो और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बट दे नीड प्रोफेशनल्स इनटू देयर कंपनीज. तो कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए
तो you should have to behave confidently and try to implement the logic. But at the end of 2 minutes or 3 minutes, आपको अगर वो प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, you can honestly tell them कि sir, you can go to the next question. You can honestly go. Definitely, it is better कि अगर आप टाइम उधर वेस्ट कर रहे हो, तो उससे 101% बेटर है कि आप उनको डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली ये बोल दें कि सर हम क्या करने वाले हैं, दूसरे प्रॉब्लम पे जाने वाले हैं, राइट? सो यू कैन डायरेक्टली टेल देम इन दैट केस. Okay, so see here. Now observe the solution. Pascal triangle का जो मैंने आपको लॉजिक बताने वाला हूँ. See here, everyone. Okay, good. So see here, hash include study.h, a very common line that we write at the front of each C program to include the header files. Please unmute everyone yourself because someone's noise is there. Kindly unmute. Once if you want to ask your doubt, at that time you can unmute yourself and ask, right? Right now, please mute yourself. If you want to ask something at that time, you can unmute, right? Okay. So see here, we have declared a number that is n, and we are asking user themselves that enter number of rows. So let's say user may enter anything. If user is entering 4, then this 4 is going to be stored here at the address of n. At the address of n, this value 4 is going to be stored. And after that, this for loop is going to work on that, right? So n is the value of rows that we have asked from the user, that till what way you need rectangular array. So Pascal's triangle is nothing but a rectangular array. Now, initially we have assigned the value of a as 1. Initially the value of a is 1, and this for loop is going to work now. Now it is very interesting to see that initially the value of I is 1, and initially the value of I is going to compare with row, right? Initially the value of I is going to compare with row, and the value of row, you can simply see that we have assigned as a 1. So right now the value of row is 1. So I is less than equals to, here if you can see, row is less than equals to n. It is assigned. So in this loop if we talk कि initially row का value 1 है, और row जो है, let's say 1 first row में अगर हम है, if we are in first row, then 1 is less than 4. Yes, it is true. अगर ये true है, उसके बाद a का वैल्यू क्या असाइन होगा 1, और इसके बाद a का वैल्यू अगर असाइन हो गया 1, तो i का वैल्यू है 1, और i का कंपैरिजन हो रहा है रो से, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1. डेफिनेटली ये ट्रू है. ये ट्रू है तो a का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. तो a का क्या वैल्यू है 1. इट इज गोइंग टू प्रिंट. जस्ट आफ्टर दिस a का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी a का वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा, a इक्वल्स टू a इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1 इनटू रो. अभी रो का क्या वैल्यू है करंटली अगर आप रो का वैल्यू देखोगे तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं इसके एग्जीक्यूट होने के बाद रो का वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होगा. राइट नाउ द वैल्यू ऑफ रो इज 1 माइनस वैल्यू ऑफ आई इज 1 डिवाइड बाय आई, दैट इज 1. 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 0. तो राइट नाउ ए का वैल्यू वापस से 0 हो गया है. और आप अगर देखोगे कि अब हमको क्या प्रिंट करना है, वापिस आप पीछे वाली लाइन पे जाओगे, इस वाली लाइन पे. ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट कब तक वर्क करेगा, जब तक ये ट्रू है. और अगर ये ट्रू है तो उसके बाद हमको a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसके बाद क्या होने वाला है, आपका जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, राइट. तो a इक्वल्स टू 1, वापिस से आप i को कंपेयर करोगे, i इज लेस देन रो, तो i का वैल्यू अब अपडेट होके हो जाएगा 2, और i का वैल्यू अगर अभी अपडेट होके हो गया है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1. दिस इज फॉल्स. इफ इट इज फॉल्स, तो ये जो प्रिंट स्लैश है, मतलब अब आपका लाइन चेंज हो गया. इट मींस दैट नाउ यू हैव चेंज द लाइन. अब आप नीचे वाली लाइन में आ गए हो, एंड रो का वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 2. नाउ अब रो का वैल्यू बढ़ के 2 हो गया. नाउ अगेन यू कैन सी द वैल्यू ऑफ इंट a का वैल्यू अब वापस से क्या असाइन हो गया है 1. वापस से a का वैल्यू 1 हो गया है,
और वापिस से आप देखोगे तो ये वाला जो लूप है ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू होगा तो वापिस से फर्स्ट वैल्यू ए का 1 प्रिंट होगा, और अगेन आप देखोगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर रो माइनस आई, रो है सेकेंड और आई का वैल्यू है 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 दैट इज 1। ए का वैल्यू वापिस से अभी हमको 1 मिला है, और सेकेंड टाइम भी ये वाला लूप ट्रू होगा क्योंकि अभी रो का वैल्यू 2 है, और आई का वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद जब इस वाले केस में 2 होगा तो सेकेंड वाले केस में भी ये लूप रन करेगा, और ए का वैल्यू अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद रो का वैल्यू आप इंक्रीमेंट करोगे और आई का वैल्यू आप इंक्रीमेंट करोगे, रो का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, रो का वैल्यू हो जाएगा 3। तो जब रो का वैल्यू इधर 3 होगा तो आई का वैल्यू यू कैन सी 2 है, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, ये हो जाएगा फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा तो वापिस से आपका क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा, और जब वापिस से आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा तो स्लैश एंड मतलब कि आप वापिस से क्या हो, नीचे वाले लाइन पे आ गए हो। इट मींस दैट यू आर अगेन ऑन द नेक्स्ट लेवल। इस लेवल पे आप देखोगे वापिस से रो का वैल्यू जो है अब इंक्रीमेंट होगा, और रो का वैल्यू अब हो गया है 3 पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद। अब क्या होने वाला है, वापिस से इनिशियली ए का वैल्यू आपका हो गया है 1। अब वापिस से आपको पता है इट इज गोइंग टू ट्रू, इट इज गोइंग टू बी ट्रू, तो इनिशियली ए का वैल्यू फर्स्ट वाले केस में ए होगा, और उस केस में आई का वैल्यू कितना था, अभी फिलहाल 1 है, और इस केस में रो का वैल्यू अभी हमारे पास 3 है, राइट। इसके बाद ए का वैल्यू वापिस से कैलकुलेट होगा, a equals to a into 1 into row, what is row 3 minus 1 divide by I, that is what is value of I 1, तो 3 minus 1 it is 2, 2 divide by 1 is 2, 2 into 1 is 2, तो अगला वैल्यू जो सेकेंड वाले केस में प्रिंट होगा वो क्या हो जाएगा 2। और उसके बाद आप देखोगे कि अब हमारे I का वैल्यू जो है वो थर्ड वाले केस में हो जाएगा 3, और उस केस में क्या हो जाएगा, you can simply see that ये वाला लूप अगेन ट्रू होगा, और ये लूप अगर अगेन ट्रू होगा तो हमको क्या करना होगा, ये जो प्रिंट ए का वैल्यू है सेकेंड केस में 2 प्रिंट हुआ, थर्ड केस में ए का वैल्यू वापस से कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये जो ए का वैल्यू हमने क्रिएट किया था 2, ये जब सेकेंड केस में आपका ये लूप ट्रू होगा तब प्रिंट होगा। जब आपका फर्स्ट टाइम लूप ट्रू हुआ तब ये ए का वैल्यू जो 1 था वो प्रिंट हो गया। जब सेकेंड केस की बारी आई तो उससे पहले हमने ए का अपडेटेड वैल्यू देखा जो कि 2 था, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब थर्ड केस में क्या होगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, करेक्ट, और जब आई का वैल्यू 3 होने वाला है तो आई का वैल्यू हो जाएगा 3, और रो का वैल्यू जो है वो 3 है, और आई का वैल्यू इस बार 2 हो जाएगा, और आई का वैल्यू जब 2 होगा तो 3 minus 2 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ आई दैट इज 2, ठीक है। 3 minus 2 दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 एंड 1 into 1/2, एंटीजर में हम प्ले कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 ही रहने वाला है। और नेक्स्ट टाइम जब थर्ड केस में ये फॉर लूप ट्रू होगा तो वापिस से ए का वैल्यू 1, क्योंकि आप देखोगे कि जो हम ए का वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ए इक्वल्स टू ए इंटू रो माइनस आई डिवाइड बाय आई, तो हर बार रो का वैल्यू जो है वो ये जो बीच का सम है वो देने वाला। दिस इज हाउ दिस लॉजिक इज गोइंग टू, ओके। सो दिस इज हाउ पास्कल्स ट्रायंगल सॉल्यूशन आपको बनाना है, और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बनाना है। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बट दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी। और आपका जो मेन क्रक्स है, that is this formula is the main crux, and these 2 for loops you have to use. Clear है सभी को, everyone? Yes sir. Okay, so अभी हमने देखा Floyd's triangle, thereafter Pascal's triangle. Okay, now let's come to the next one, and it is very easy question, और just आपके basic concept check करने के लिए question कभी-कभी पूछा जा सकता है। And the question is, write a C program for generating multiplication table, and I am expecting everyone to answer it. Multiplication table मतलब let's say आपने 10 लिया है तो 10 का multiplication like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, right? आपको 10 times इसका multiplication table print करना है, और काफी सिंपल प्रोग्राम है। आई होप सभी से बनना चाहिए ये। आप 2 मिनट ट्राई कीजिए, 1 मिनट ट्राई कीजिए, और अपना लॉजिक चैट बॉक्स में जरूर पुट करें, राइट, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीवन। और आप अभी से ये हैबिट डालोगे तो अगर आजकल इंटरव्यूज आपके ऑनलाइन होने लगे तो एट दैट टाइम अगर कंपनी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करती है तो आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको इसी टाइप से चैट बॉक्स में कमेंट करके उनको कोड बताना होगा। तो वो हैबिट अभी से डालने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली वो जो है आपको लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होगा, ठीक है।
तो अभी से आप ट्राई करो, अगर नहीं भी बन रहा है तो लॉजिक डालो, एटलीस्ट लॉजिक ट्राई करने, लॉजिक को जो है कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करो। कहां पर? चैट बॉक्स में, ठीक है। डेफिनेटली अगर ये हैबिट अभी से बन गई तो आपको काफी यूजफुल रहने वाला है। हैबिट अगर अभी से बन गया ये, डेफिनेटली आपको काफी यूजफुल होने वाला है आगे। तो 1 मिनट ट्राई करिए सभी, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये। ओके, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करें। मैं देख रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर working quality work on that. Yes, you can use any language and you can answer it quality work. Very good. Very good. Okay, very simple program. So let's discuss the solution now. See, you can simply see, हम एक generate multiplication generate करना चाहते हैं. We are just want to generate multiplication table, and because of generating multiplication table, you can write a program like this. Okay, and program simply look like header file, thereafter main function, declaring a variable. You can see that whenever I am explaining a code to you, in front of each line, whenever there is a requirement, I am writing a comment line. You can see I worked a lot of it, right? I write comment. It is my habit to write comments in front of the code so that you can easily understand, you can easily grasp. That is why when you work in industry ना, आप इंडस्ट्री में कभी भी एक प्रोजेक्ट पे अकेले वर्क नहीं करते हो. इन ग्रुप ऑफ पीपल वी आर गोइंग टू वर्क. सो प्लीज अप्लाई करने. डेफिनेटली अगर आप ऐसे कमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे, अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम, बट यू मस्ट हैव टू अप्लाई दिस हैबिट ऑफ राइटिंग गुड क्वालिटी कोड. तो आपका डेफिनेटली एक क्वालिटी इंप्रेशन जाएगा, राइट? तो हम क्या करने वाले, यूजर से हमने बोला है एंटर अ नंबर टू जनरेट द टेबल, राइट? तो हमने बोला कि जिस भी नंबर का आपको टेबल चाहिए वो नंबर आप एंटर करो. लेट्स से यूजर ने बोला 12, नो प्रॉब्लम, दैट नंबर इज स्टोर्ड, एंड आफ्टर दैट हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है कि टेबल ऑफ नम ये है, राइट? तो टेबल ऑफ नम ये है. उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर लूप. फॉर लूप क्या बोल रहा है, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस. इसका रेंज जो है वो 1 से 10 है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मल्टीप्लीकेशन टेबल आपको 1 से 10 की रेंज में लिखना है. सो 1 से 10 की रेंज में अगर आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है तो आप क्या करोगे, हमने डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वो प्रिंटफ स्टेटमेंट में फिट कर दिया है. %d इंटू %d. यू कैन सी %d इंटू %d इक्वल्स टू %d. मतलब हर बार कोई दो नंबर आपके मल्टीप्लाई होंगे और उसी इंस्टेंट पे आप उनका रिजल्ट भी लिख दोगे. तो हम कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट %d का मतलब है ये नम जो यूजर ने डाला है, मतलब 12. और फॉर लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है i इक्वल्स टू 1 से. फॉर लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है i इक्वल्स टू 1 से, तो i का वैल्यू है 1. तो %d इंटू %d, इसका मतलब 12 इंटू 1. 12 इंटू 1 क्या हो गया, 12. तो ये जो नम इंटू i है इसका मतलब है ये वाला %d. ये आपका प्रिंट हो जाएगा. तो पहली बार क्या प्रिंट हो गया, 12. जैसे ही पहली बार ये प्रिंट हुआ 12, अभी i का वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, और आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंटिंग i का वैल्यू 1 से हो जाएगा 2. नाउ एट दिस टाइम नम विल बी रिमेन सेम, बट i का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, एंड 12 इंटू 2 24. तो अगला वैल्यू आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 24. दिस इज हाउ ये 10 टाइम वर्क करेगा. लास्ट वैल्यू आपकी 120 प्रिंट होगी, और जब i का वैल्यू 11 होगा, 11 लेस देन 10 फॉल्स, रिटर्न 0. तो ये जो आपका टेबल है 12 का, ये आप कंप्लीटली लिख लो, राइट? दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू. क्लियर है ये सभी को? वेरी इजी प्रोग्राम. द लॉजिक इज क्लियर? यस आशुतोष. एग्जाम में यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, यू कैन यूज पाइथन, you can use C language, you can use Java, but if you are uncomfortable in any particular question, you can also write algorithm, because company person just want to know
that whether you know the logic or not, and if you know the logic, can you explain your logic with the help of code or not, right? So you have to show them that yes, I am capable enough of learning something new, and I can do very well in the logic, I can do very well in the programming, and I can do very well in the coding if you give training to me on certain topics, right? So this is how you have to explain them. Okay, sir, please explain printf statement again. Yes, we see what is going to happen here. Printf statement, inside printf statement we have written like %d into %d equals to %d, and respectively what is the variable num. So this num is representing this %d. The second variable is I. So this I is representing this %d. And what is the second variable? Num into I. So num into I is represented by this %d. Initially, num is nothing but the number user have entered. So let's say user have entered 12. Let's say user have entered 12. And our for loop is working from 1 to 10. So initially the value of I is 1. So 12 into 1 is nothing but 12. So at the first instant 12 is going to be print. पहली बार में 12 print हो जाएगा. In the next iteration, value of I is going to be increment because of post increment operator. This is the post increment operator, and just because of it, value of I is going to increment. Now value of I initially was 1, now changed to 2. In that case, अगले केस में जब ये printf statement रन होगा, 12 will remain same, but ये I का value 1 से हो जाएगा 2, और अगला value क्या print हो जाएगा 24. Again post increment will be there, I का value हो जाएगा 3, and in that case 12 into 3 क्या हो जाएगा 36, and likewise that it is going to work in 10 iterations. Clear है? Is this clear? If the condition is not written in printf, how we can write the condition? Yes, you can write this condition above printf statement also. You can calculate num into I, and you can assign the value num equals to I to anything. Let's say you have q, and q equals to num into I, and at that time you are printing q, right? So you can do the multiplication just above this statement also, and there are many more ways. You can use a while loop also. While loop is going to work 10 times, and after working each time you have to increment the value of I every time, and every time value of I will be increment, you have to multiply value of num with I. Once value of num with I will be multiplied, it is going to store in any variable, and you are going to write that printf statement. Inside printf statement you are going to write that variable. Okay, yes. So yeah, don't worry Ashutosh, I am going to give you so many questions for practicing in the main exam, so don't worry about that. You are going to get so many questions, and I will also share some important questions today itself, so that you can at your home you can practice on it, right? Because it is impossible in the session itself to discuss all the questions, but definitely the probability of this kind of questions are very high in MNC exams, MNC interviews, right? But don't worry, we will give you the coding, hard level coding core questions also one by one. So next question is, write a C program for printing ASCII values of all characters. I hope as a computer science student you all know the meaning of ASCII, correct? ASCII values are generally created by ANSI, that is American National Standard Institute, for assigning any values. जो भी value computer science में assign किए जाते हैं, चाहे वो IP address में कितने bit रखना है, IPv4 address में कितने bit रखना है, IPv6 address में कितने bit रखना है, या किस port को क्या number देना है, या फिर कोई भी एड्रेस कितने बिट का होगा, इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? ANSI. किस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ANSI. इन कंप्यूटर साइंस ANSI is a central body, global body, who decides the basic convention that can be followed globally for good computer programming. Okay, तो आपका जो यहाँ पर लॉजिक है, आपका यहाँ पर जो टारगेट है, आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है, एंड वो सी प्रोग्राम आपको कैसे लिखना है? कोई भी अगर मैं करेक्टर दूं तो उसका ASCII वैल्यू आ जाए। जैसे कि अगर मैंने A पास किया तो इसका ASCII वैल्यू होता है 65, ये होना चाहिए प्रिंट।
अगर मैंने बी दिया तो इसका ASCII वैल्यू होता है 66, ये प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट। अगर मैंने स्मॉल ए दिया तो इसका वैल्यू होता है 97, लाइक दैट, जो भी, तो आपको ये प्रिंट होना चाहिए 97 और माइट बी 95, जो भी है, ये आपका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक लॉजिक बिल्ड करना है। कैन यू अप्लाई द लॉजिक ऑन इट? इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये टीसीएस ने ही पिछले साल पूछा है कैंडिडेट से, तो ये बिल्कुल रियल लाइफ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बट स्टिल मैं आपको कंप्लीट सिनेरियो दे दूंगा। मेरे पास 500 से 600 क्वेश्चन है, राइट। आई एम हैविंग अ सीरीज ऑफ 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमएनसीज, बट 500 क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे तो हो सकता है, बट इट नीड्स 1 मंथ रेगुलर सेशन, इट माइट नीड मोर देन 1 मंथ, राइट, 43 दिन का सेशन। लेकिन अगर हम 4 दिन के सेशन में वर्कशॉप कर रहे हैं तो आपको फटाफट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, और इस तरीके से सॉल्व करने होंगे कि आपको ये भी पता चल जाए कि इस टाइप के प्रॉब्लम कंपनी के लिए हमको कैसे एक्सप्लेन करने, और एटलीस्ट एक लेवल का पता चल जाए, और आप ये भी बता सको उधर की सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और एटलीस्ट आपको पैटर्न पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, राइट। वेरी गुड। किसने लिखा है कोड? शिवांश, एक्सीलेंट। यस स्वप्निल, गुड। सूर्या, वेरी गुड। आप एटलीस्ट ट्राई करें ऑल स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा फॉल्स होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोड नहीं बन रहा तो एल्गोरिथम लिखो, एटलीस्ट एल्गोरिथम लिखे, एटलीस्ट एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करें, ठीक है। जस्ट गिविंग 30 मोर सेकेंड्स कि आप ट्राई करें, उसके बाद में इसका बिल्कुल जो सिंपल सा सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि 100 लाइन का कोड है या 50 लाइन, सिर्फ 5 लाइन का कोड है, सिर्फ 5 लाइन के कोड में पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। तो आप सोचिए थोड़ा इंटरेक्टिवली कि कैसे हो सकता है। एवरीवन, okay, see, now let's see the solution. Write a C program printing ASCII values. Initially header is file, main function, no need to worry. The main crux is a character is called here a variable. The variable name is ch. Ch is nothing but whatever I have discussed here, this ch, it is your character variable. It is your character variable, and this character variable is going to hold the value whatever user is going to tell. Now printf enter a character. हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको जिस भी करेक्टर का ASCII वैल्यू चाहिए आप उसको पूछो, आप उसको एंटर करो। तो लेट्स से यूजर ने डाला a, तो यूजर ने जब a डाला तो हमने इस a को m%a एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, ये जो ch का एड्रेस होगा यहाँ पर जाके a स्टोर हो गया। नाउ ये था यूजर का इनपुट, ये क्या था? यूजर का इनपुट। जैसे ये इनपुट आया तो अगर मैंने बोला द ASCII वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल इज %d, अब आप देखो जब भी हम किसी करेक्टर को प्रिंट करते हैं, यू नो दैट हमको वो करेक्टर के लिए %c लिखना होता है, बट अगर %c की जगह हम क्या लिख दें %d, तो उसका जो ASCII वैल्यू है बाय डिफॉल्ट कंपाइलर हमको निकाल के देगा, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 65 अगर यूजर ने a इनपुट डाला है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, एंड आई होप कि जो मेन क्रक्स सिर्फ इतना सा था, बाकी कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है, ना ही कोई हार्ड लेवल आपको कोडिंग करनी है। ये मैंने बोला 5 लाइन का कोड है और ये सिंपल 5 लाइन। गेटिंग इट एवरीवन? Yes, sir. Okay, let's go for the next one, and the question is write a program for reversing any number. आपको कोई भी नंबर को रिवर्स करना है, कैसे भी कर सकते हो और किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। You can use any language, and you can बस just your target is you have to reverse. So do integer values also have an ASCII values? ASCII value are generally for characters, right? So for integer, compiler works in binary sense. अगर आप 1 लिखोगे तो कंपाइलर उसको 0001 रीड करेगा, ओके। अगर आप 10 लिखोगे तो कंपाइलर उसको 1010 रीड करेगा। सो फॉर इंटीजर वी आर हैविंग बाइनरी एक्सप्रेशन, क्योंकि वो मशीन लेवल लैंग्वेज में रीड होते हैं। तो क्या होगा, करेक्टर आपने ए भी अगर टाइप किया है तो करेक्टर, बहुत एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें इधर पिछले वाले क्वेश्चन में, कि अगर आपने ए का करेक्टर वैल्यू भी दिया है 65, तो ये 65 जो कंपाइलर पर रीड होने वाला है ना, ये
65 डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, कंपाइलर के बैकएंड में इसका क्या होगा, इसका बाइनरी एक्सप्रेशन होगा, मतलब सीरीज ऑफ जीरोस और वंस में ये 65 लिखा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इधर ही, ईच करेक्टर और स्पेशल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सम ASCII कोड एंड ईच ASCII कोड ऑक्यूपाइज 7 बिट्स इन मेमोरी। तो ये जो 65 का जो भी कोड होगा उस कोड में ये लिखा जाएगा। 2 to the power 6 is 64, तो जो 6th पोजीशन है उस पे 1 होगा और लास्ट पोजीशन पे 1, और ये बीच में सब क्या हो जाएंगे 0। दिस इज हाउ ये एक्सप्रेशन होगा इन द जो बैकएंड होगा, बैकएंड में इस तरीके से ये कोड लिखा जाएगा, राइट। तो मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर है। यस सर। ओके, नाउ अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो ये है, आपको एक नंबर है उसको रिवर्स, कोई भी प्रोग्राम लिखना है रिवर्सिंग एनी नंबर। बेसिकली पुष्कर, for numbers the program that company asks I will cover in the today's session itself in the later part, कि वो आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करने का बोल सकते हैं या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का बोल सकते हैं। ओके, तो इस टाइप में ऐसे कन्वेंशन फॉलो करती है कंपनी, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, ये क्वेश्चन बना है सभी से। ओके, सी हियर अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, देयर आफ्टर सम वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हैं हमने। एक वेरिएबल है जिसका नाम है n, the another variable name is reverse and another variable whose name is rem, that is remainder। उसके लिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म rem उसका यूज किया। दे ऑल आर इंटीजर टाइप वेरिएबल। हमने देयर आफ्टर पूछा है यूजर से एंटर अ नंबर, जो भी यूजर को क्या करना है रिवर्स। लेट्स से यूजर ने बोला है 1 2 3, इसको रिवर्स करो। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 2 1 ये आना चाहिए, इजंट इट। नाउ लेट्स सी कि हम अगर इसको ट्रेवर्स करके देखेंगे तो ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो 1 2 3 है, सबसे पहले ये जो नंबर है 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू स्टोर इन n, मतलब राइट नाउ n के पास जो वैल्यू है वो क्या है 1 2 3, 1 2 3 n के पास वैल्यू है। नाउ व्हाइल n डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर n का वैल्यू 0 नहीं है देन रिमाइंडर इक्वल्स टू n mod 10। तो सबसे पहले क्या होगा 123 mod 10, क्या आंसर आएगा, हाउ मेनी रिमाइंडर, द रिमाइंडर वुड बी 3, isn't it? ये जो है हमको अभी रिमाइंडर के पास क्या वैल्यू है, रिमाइंडर इज n mod 10, n का वैल्यू था 123, यहां से यूज किया mod 10, अभी हमको मिला 3। इसके बाद रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10, इनिशियली रिवर्स का क्या वैल्यू है 0, इनिशियली रिवर्स का क्या वैल्यू है 0, तो रिवर्स का वैल्यू क्या आएगा 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, तो अभी राइट नाउ रिवर्स का वैल्यू क्या है 3। अब हमको क्या करना है n डिवाइड इक्वल्स टू 10, इसका क्या मतलब होता है n डिवाइड इक्वल्स टू 10, इसका ये मतलब होता है n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। अभी n का वैल्यू था 123, 123 डिवाइड बाय 10, जब इसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे और हमारा ये इंटीजर वेरिएबल है, कितना आंसर आएगा 12। क्लियर है सभी को? तो जो हमारा अपडेटेड वैल्यू है n का, वो अपडेटेड वैल्यू क्या है अब 12। नाउ अगेन क्या होगा, while n does not equals to 0, बहुत इंटरेस्टिंग इटरेशन है, आप फॉलो करें, फोकस करें, बिल्कुल इंटरेस्टिंग इटरेशन है ना। मैं चेंज कर लेता हूं पेन का कलर। तो अब n का वैल्यू सबसे पहले 123 था, अब n का वैल्यू हो गया 12। अब क्या होने वाला है, while n does not equals to 0, n का वैल्यू 0 नहीं है, यस n 12 है, 12 0 नहीं होता है, तो रिमाइंडर n mod 10, 12 mod 10 कितना हो जाएगा, 12 mod 10 गाइस 2। अगर ये 2 हो गया तो राइट नाउ रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, अब 2 है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर रिवर्स का वैल्यू था 3, अब कितना हो जाएगा रिवर्स का वैल्यू, रिवर्स इंटू 10, दैट इज 3 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर कितना मिला मेरे को 2, कितना हो गया 3 इंटू 10, 30 प्लस 2 दैट इज 32। तो राइट नाउ रिमाइंडर का वैल्यू हो गया 2, राइट नाउ रिवर्स का वैल्यू हो गया 32। इसके बाद क्या होगा, n का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, n इक्वल्स टू n बाय 10, मतलब 12 डिवाइड बाय 10। अब क्या आंसर मिला आपको 1।
गेटिंग इट 12 डिवाइड बाय 10, 10 1 जा 10 और 2 रिमाइंडर आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर 12 बाय 10 करना है, तो राइट नाउ जो अपडेटेड वैल्यू n का वो कितना हो गया 1. लेट मी चेंज द कलर अगेन, और जब मैं कलर चेंज करता हूँ तो लेट मी टेक एनी कलर सो दैट वी कैन ब्लैक कलर. ओके, सो अभी n का वैल्यू कितना है 1. इस केस में क्या होगा 1 does not equals to 0. yes, तो अब क्या करना है 1 mod 10, तो अगला क्या हो जाएगा 1 mod 10. 1 mod 10 कितना होता है 1, तो रिमाइंडर अभी कितना है मेरा 1. तो रिवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रिवर्स इंटू 10. अभी रिवर्स कितना था 32, 32 इंटू 10, बिकॉज रिवर्स का वैल्यू था 32, यहां से उठाया मल्टीप्लाई विद 10 प्लस रिमाइंडर. कितना रिमाइंडर मिला मुझे 1 प्लस 1. 32 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया 321. करेक्ट. नाउ n का वैल्यू क्या बोल रहा है n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10. अभी 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे कितना आएगा 0. जैसे ही 0 आया while n does not equals to 0, false. यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई. यहाँ पर जब कंडीशन फेल हो गई इस केस में, तो हम क्या करेंगे ये पूरा स्किप कर देंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आएंगे. रिवर्स नंबर इज परसेंट डी रिवर्स. रिवर्स के पास लेटेस्ट वैल्यू क्या है 321. 321 इज गोइंग टू बी प्रिंट. और आप देखोगे एग्जैक्टली जो हमको 321 डिमांड में था वही था, और 321 इज द रिवर्स ऑफ 123. दिस इज हाउ इटरेशन इज गोइंग टू वर्क. दिस इज हाउ इटरेशन इज गोइंग टू. क्लियर है ये प्रोग्राम सभी को? अगर ये क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा. Sir, I have a doubt, sir. पूछिए पूछिए. Sir, can you please take a test case of 120? डेफिनेटली 120 का हम ले सकते हैं कोई भी टेस्ट केस. तो जस्ट Sir, can you please dry run? क्या Can you please dry run? 120 का केस बोले तो हम ले आओ. 120 वाला. Yes, sir. Yes, sir. See here, okay. 120 initially n does not equal to 0. correct? n mod 10. just a second. 120 mod 10 कितना हो जाएगा गाइस 12. ये किसका वैल्यू है अभी रिमाइंडर का. उसके बाद क्या होगा रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10. इनिशियली रिवर्स का वैल्यू कितना है 0. 0 into 10 इज 0 प्लस रिमाइंडर. कितना रिमाइंडर है आपका अभी रिमाइंडर कितना था 120 mod 10 किया तो mod 10 है ना, यहाँ पर mod 10 है तो रिमाइंडर अभी आपका 0 है. करेक्ट. तो राइट नाउ अभी आपका रिमाइंडर कितना है 0. अभी आपका रिमाइंडर 0 है तो रिवर्स भी अभी आपका 0 है. 0 into 10 plus 0. नाउ n का वैल्यू वापस से अपडेट करना है. अभी n का वैल्यू कितना था Sir, I think it is only written at 21. देखते ना. तो फिर ये अभी 120 का आपको वैल्यू अपडेट करना है. 120 डिवाइड बाय 10 ये कितना वैल्यू हो गया 12 हो गया. यहां तक समझ में आया नहीं आया? n का वैल्यू अभी हमारे पास 21 Yes. हो गया है. अब मैं वापस Sir, चेक कर रहा हूँ. n does not equals Sir, to. please explain one more. हाँ? Should I explain it once again? Yes, sir. Just a second. Let me erase it all the stuff so you can understand all things with clarity. Just a second. Just wait a second. Okay. I am going to explain it very neat and clean so that no confusion would be there. No confusion. Okay. Just a second. Okay. Now let me start. See, we have to take the value of 10 is a 120 as a use case, and I am dry running this. Okay. So see, n does not equals to 0. In this case, it is 2, correct? So remainder equals to n mod 10. So right now the value of remainder equals to n, that is 120 mod 10. What is 120 mod 10? 0, because it is going to exactly divide by 10. That is why remainder is 0 right now. In the next line, that is reverse equals to reverse into 10. What is the value of reverse? 0. That is 0 into 10. That is 0 plus remainder, which is also 0. So right now the value of reverse is 0. And I have to update the value of n. N equals to n divided by 10. What is the value of n? 120 divided by 10. What it would be? It would be 12. So the updated value I am updating here. The updated value of n is now 12.
till now it is clear? Yes, sir. Okay. sir. Yes, sir. Now, all the use cases with 12 you are going to see with the green color now. Okay, 12 does not equals to 0, true, so it is true. If it is true, remainder equals to n mod 10, that is 12 mod 10. What is 12 mod 10, guys? It is 2, correct? So if it is 2, then reverse equals to reverse into 10. What is reverse? Initially it is 0, so 0 into 10 plus remainder, that is nothing but 2. Now if it is 2, then n the value of reverse is 2 right now, and n equals to n divided by 10. So right now the value of 12, if I have to divide it with 10, it is going to become 2, right? So right now the value of n becomes 2. Now again I am changing the color, and the new value of n becomes 2. Till now it is clear to everyone? Yes. Okay, so all new cases I am Yes, going to sir. write with blue color. Now 2 does not equals to 0, true? Yes, it is true. 2 does not equals to 0. In that case, 2 mod 10. 2 mod 10. What is 2 mod 10, guys? It is 2. Now, if it is 2, reverse equals to reverse into 10 plus remainder. What is the value of reverse right now? 2. So 2 into 10 plus remainder. What is remainder? 2. So it is nothing but 22. What is 22? Reverse. And thereafter, n equals to, I have to update its value. That is 2 divided by 10 equals to 2 divided by 10 equals to 0. Now the next value n is 0. N does not equal to 0. So final value of reverse we are getting is a so this problem you are getting. Yes, sir. Your voice is coming, sir. Yes, sir. My voice is coming. Okay, so in Yes, first sir. case the remainder was 0, correct? N mod 10. So n mod 10 gives us 0, so we have put it correctly. Thereafter reverse equals to reverse into 10 plus remainder. So at that time we are right here, and at the, in the next instant when I divided it, so it would become 12. So no need to worry about it. Then 12 mod 10, it is exactly 2. Then 2 reverse, that is 0. It was 0 into 10 plus 2. Okay, so it's 2, and then if it is 2, then the next value of n becomes 12 divided by 10. 12 divided by 10 is nothing but 2. So 2 mod 10, again 2 mod 10 is 2, and thereafter 2 into 10, 2 into 10 plus 2. Okay, so it's okay, here we got remainder 0. So I think just because that in first case it is exactly divisible, na, that is why we are getting error here. Okay, so don't worry, let it pen. I will discuss it tomorrow. Don't worry. Okay, this So, doubt. Yes, 12 divided by 10 1 आएगा. where guys, where you are asking? In last here or here or here? So 12 divided by 10. 10 divided by 10, but where we are dividing 10 by 10? So 12 Sir, divided by 10. 12 divided by 10 is So equal 1 to आएगा. 1. 2 नहीं Okay, आएगा. yes, Yes, sir. Here Divisible we- layer. Dividend. Actually, here we just got confused. On the place of division, we just took modulus, correct? Just because of this modulus, we got confused. Okay, so put it 1 here. So if we put 1 now, so is there any changes? Is there any, just let me change the color. Do we are getting any further change? Okay, 12 divided by Sir, 10. अब सही हो गया. 1. Okay, so if it is 1, it means that the new value of n is 1, correct? This is just got confused, bit confused, because the operation modulus operation and division operation look like similar. That is why on the many it's called as a silly mistake, and many times we perform this kind of silly mistakes. On the place of division we take modulus, or on the place of modulus we take division. So here on the place of division, what we considered, I considered it as a modulus. That is why I write 2 here, right? Okay, so if I consider 1 here, then 1 does not equals to 0, and thereafter remainder of 1 mod 10. So 1 mod 10 remainder is nothing but 1, correct?
Yes, sir. So if it is 1, then reverse equals to reverse into 10. So what is reverse? The earlier value of reverse was the here we got it now. So earlier value of reverse was 2, correct? So 2 into 10 plus 1, that is 21, correct? Here, if we talk in this case, here it was becoming 1. So if it becomes 1, then in that case, the reverse is 2 into 10 and the remainder was 1. So if the remainder was 1, okay, what was your remainder? N modulus 10. So if you 1 modulus 10, that is 1, it becomes 21. So 120 you got as a 21, correct? Yes, sir. Sir, Mhm. can we say, sir, it is a 3-digit number when, sir, इकाई में यदि 0 रहता है तो ये सिर्फ 2-digit number देता है. Yes. If there are multiple zeros, Yes, sir. you have to consider this by default. It means that this is equivalent to 21. You just need to consider it like this. Yes, sir. Yeah. 21 like 21 or 000 21 like that. Right. In decimal sense, you have to consider it like that. Okay. That 0, 2, 1 are nothing but 1, 2, 0. So very good. You have asked this question, and I hope that many students' doubt got cleared with that also. So all the students, I hope you have listened this solution, and with the use case of n equals to 121, this doubt is clear, right? So can we move to the next one then? Everyone? Can Sir, I please explain the scanf line. scanf? Yes, sir. Actually, scanf is a function which is used to store the input values which we took from the user. So here we have asked user that enter a number. So our purpose was just to ask user that which number he or she wants to make reverse. If user wants to make reverse of 120, then 120 is going to store as m%n. It means that at the address of n, let's say n is representing this memory location, and in that memory location, this 120 is going to be stored. Now, whenever we are going to fetch the value of n, this 120 is going to be fetched from this location. So scanf function store the values which we took from the user, and we store it in the syntax like m%n. That is, at the address of variable n, that value is going to store. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Now the next one is write a program for finding prime factor of a given number. Do you know the prime factor, guys? Prime factor. Important question it is. And let me check out the name of company, in which company. Okay. So basically, almost you can simply say that Zomato has asked it in its previous year interview with someone, and TCS has also asked it, and you can simply say that Accenture has also asked it, right? So prime factor you have to find. I am giving 1 minute to everyone. 1 minute I am giving to everyone. Please do analyze the question, and please try to find out. At least write the logic in comment section. At least try to write, or at least try to figure out कि कैसे कोड लिखा जाएगा. प्राइम फैक्टर आपको पता है ना, जैसे कि 5 है, तो 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 into 1, राइट? तो जैसे कि अगर मैंने बोला 6, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 6 into, जैसे कि आप प्राइम फैक्टर जब निकालते हो, तो ये तो क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो, तो 6 का क्या हो जाएगा? 3 into 2 हो जाएगा, करेक्ट? अगर आपके पास प्राइम नंबर 8 है तो आप क्या लिखने वाले हो? 2 into 2, इस तरीके से कुछ. ओके, सी हियर अप्रोच क्या है, आप अप्रोच देखेंगे इधर.
आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन दे सकते हो. You all can give solution like this also, right? So the sole purpose of telling this is just to let you know that how to answer such kind of things. So now this is the last question for today's class according to time. Blah, blah, blah. Actually, the problem is that today's session was started somewhat late, right? Somewhat delayed. So just I will complete the rest part. सर एक्सक्यूज मी सर हाँ. एक्सक्यूज मी सर अपन इस पे ये भी कर सकते हैं क्या, पहले मतलब जितने भी नंबर है किसी हाँ. एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उनको सबको प्राइम नंबर मान लेते हैं, ठीक फिर है. उसको फिर अपन डिवाइड करते हैं, तो फिर उसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब पहले मतलब ऐसा कि सबको प्राइम नंबर मान लेते हैं, फिर जैसे 2 है तो 2 की टेबल में जितने नंबर आते हैं सबको कैंसिल कर देते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, फिर उसके बाद 3 को मान लेते हैं, फिर 3 की टेबल में जितने नंबर आते हैं सबको कैंसिल कर देते हैं, फिर 4 को नहीं मान सकते क्योंकि वो 2 की टेबल से कैंसिल हो गया, तो ऐसे लेकिन पूरा हो ये जाएगा. प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर नंबर बड़ा है ना, क्योंकि अगर लेट से नंबर कोई बड़ा है तो उसके लिए मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी काफी ज्यादा हो जाएगी. गेटिंग इट और नॉट? सर बल्कि कम होगी सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नहीं, अगर आप लेट से आपका नंबर है लेट से 1 5 7 9 8 7 ये नंबर है ना, अभी हमको पता करना है इसके प्राइम फैक्टर्स, फिर हम क्या करेंगे? हाँ इसमें बढ़ जाएगी, ये सही बोल रहे राइट. हो. तो हम Yes, sir. राइट, क्योंकि आपने बोला ना अभी 2 का चेक करो, फिर 3 का, फिर हम जितने भी प्राइम नंबर यहाँ तक आते सबका चेक करना पड़ेगा. करेक्ट? हाँ सही तो बोल रहे इसलिए हो. हम क्या कर रहे हैं, बहुत इजी सॉल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूँ. सी हियर, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इधर. लेट से कोई भी नंबर है ना, आप कोई भी नंबर ले लो. लेट से आपका नंबर 16 है, हम उसको प्रॉब्लम का कितना छोटा कर सकते हैं ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना छोटा कर सकते हैं. सी, इसका कोई भी जो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा, राइट? अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें डायरेक्ट, हम क्या ले लें, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 16 का 4. तो आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो आप देखोगे कि 16 का वास्तव में जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है. मतलब आप 2 को लेके ही सोल्व कर सकते हो, आपको 2 से आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वापिस आप 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये फिर 2 आ जाएगा. गेटिंग इट? लेट से आपका नंबर 81 है, तो अगर आप 81 का स्क्वायर रूट लेते हो तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9. आप देखोगे कि वास्तव में 81 जो है इसका जो प्राइम फैक्टर होगा इट इज नॉट मोर देन 9, इट इज नॉट मोर देन 9. लेकिन 9 का वापिस आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये फिर 3 आ गया. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब आपको सिर्फ 2 नंबर आपने, मतलब इन जस्ट 2 मूव्स आपने ये बता दिए. मैं ट्रिक क्या बताने वाला हूँ, अगर किसी का भी आप स्क्वायर रूट निकाल लो और उसका स्क्वायर रूट अगर सक्सेसफुली निकल जाता है तो आपका प्रॉब्लम 4 गुना कम हो गया है. गेटिंग इट और नॉट? आपका प्रॉब्लम स्क्वायर रूट से सिंपल हो चुका है, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका प्राइम फैक्टर उसके स्क्वायर रूट से बड़ा होगा ही नहीं. 100% श्योरिटी है. लेट से आप 100 ले लो, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है 100, 10. तो आप 10 को कैसे लिखोगे, 10 इंटू 10, या फिर इसका प्राइम फैक्टर और कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 10. तो ये 10 से बड़ा कोई भी डिजिट आया क्या? नहीं. मतलब हमको सिर्फ 10 तक मूव करने की जरूरत पड़ी. गेटिंग इट? स्क्वायर मतलब मैं सॉल्यूशन ये बताना चाह रहा था कि स्क्वायर रूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंसर करने में. गेटिंग इट? एक आइडिया लग रहा है बेसिक सा क्या बताना चाह रहा हूँ. सर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ फिर? हाँ, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ फिर, अगर नंबर 81 का 82 होता फिर? हाँ. अब जैसे कोई नंबर अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसमें कुछ ऐड करते रहिए जब तक कि वो क्या हो जाए, उससे छोटा ना हो जाए या उससे बड़ा ना हो जाए, या फिर आप उसको डिवाइड बाय 2 करके उसका जो क्लोजर नंबर है वो ले आइए. राइट? जैसे कि इस प्रोग्राम को पहले हम देखते हैं. सी हियर, हमने क्या किया, ये मैंने पाइथन में प्रोग्राम लिखा है. डोंट वरी, पाइथन में भी लिख सकते हो और आप चाहो तो यू कैन राइट इन सी प्रोग्राम आल्सो. ठीक है? while n does not equals to, हमने प्राइम फैक्टर का क्या किया, एक फंक्शन बना लिया है. और आपका जो बेसिकली इंटर द नंबर ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइम फैक्टर, यहाँ पर यूजर क्या है वो नंबर डालने वाला है जिसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, और ये फंक्शन कॉल होगा. ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन इसको इधर से कॉल करेगा
A1 नंबर डिजिबल। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अगर कोई भी नंबर A1 है, इवन नंबर है, तो उसको mod टू करते रहो। लेट्स से कोई भी नंबर आपने दिया 200 दिया, तो mod 2 करो, राइट। तो कितना है, इक्वल्स टू 0, यस। तो प्रिंट क्या कर दो 2, आप क्या कर दोगे एक बार प्रिंट 2, और n क्या करोगे, n इक्वल्स टू n/2, तो n इक्वल्स टू n/2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100। वापस से 100 mod 2 इक्वल्स टू 0 करो, तो कितना हो गया, ये 0 है, यस। तो अगेन क्या प्रिंट कर दो 2, उसके बाद वापस से 100 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। अब कितना हो गया, ये 100 को डिवाइड बाय 2 किया तो कितना हो गया 50। वापस से क्या चेक करो, mod 2 इक्वल्स टू 0 है, यानी अभी भी है, तो एक और बार 2 प्रिंट कर दो, और अब इसको 50 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो, अब हो गया 25, करेक्ट। नाउ 25 mod 2 इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स है, करेक्ट। इसका मतलब इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको क्या कर रहा है, जब तक वो नंबर इवन है तब तक उसको छोटा करते रहो। तो हमारा जो नंबर था एक्चुअल 200, वो छोटा होकर कितना हो गया 25 हो गया, वो छोटा होकर हो गया 25। अब जब जैसे ही आपका नंबर बना ओड, जैसे ही आपका नंबर इवन से क्या बना ओड, 200 इवन था, 100 इवन था, और 50 भी क्या था इवन। लेकिन जैसे ही आपका नंबर इवन से क्या बना ओड, आप क्या करोगे, while n mod i does not equals to 0, करेक्ट। और i का वैल्यू हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब 25 mod 3 अगर ये 0 है तो प्रिंट कर दो i का वैल्यू, मतलब 3 प्रिंट कर दो। लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो वापस n का वैल्यू डिवाइड कर दो 3 से, मतलब 25 को क्या करो 3 से डिवाइड करो। तो 25 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, एवरीवन 3 8 जा 24, करेक्ट। अभी कितना आंसर आ गया 8, मतलब अब आपका नंबर रिड्यूस होके हो गया 8। नाउ 8, आप अगर 8 को चेक करोगे, तो आपने जब 8 को चेक किया तो n इज ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2 है, यस n इज ग्रेटर देन 2। तो n ग्रेटर देन 2 है तो आप डायरेक्टली क्या प्रिंट कर सकते हो, ये 8 प्रिंट कर सकते हो, करेक्ट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि वापस आपका नंबर ये क्या हो चुका है, व्हाट इज ये जो नंबर है आपका 25 डिवाइड बाय 3 जब हमने किया है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम दैट कि जब आप मॉड करोगे वो 0 होना चाहिए, 0 है क्या, नहीं है, तो 0 नहीं है, ओके ओके। तो नंबर अगर ग्रेटर देन है तो उसको हम डायरेक्टली एज इट इज कर सकते हैं। एल्स वापस हमको क्या करना होगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट करना होगा, और i का वैल्यू आप इंक्रीमेंट करोगे तो 4 से ये डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो i का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करोगे तो 5, यस 5 से ये डिविजिबल है, तो 25 इज डिविजिबल बाय 5। तो आप क्या करोगे इस केस में, ये वाला i का वैल्यू कर दोगे, i का वैल्यू क्या हो गया 5। इसके बाद क्या होगा, अगला वैल्यू क्या करोगे, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 5, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 5, मतलब ये जो 25 है इसको 5 से डिवाइड करोगे तो वापस आपको 5 मिला, और i का वैल्यू भी आपका 5 है, तो 5 mod 5 इक्वल्स टू 0 है क्या, ट्रू है, तो वापस प्रिंट आई, मतलब i का वैल्यू क्या हो गया 5, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद में n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 क्या हो गया 0। लास्ट में n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं, क्यों, लास्ट में n का वैल्यू क्या मिला 0। इस केस में आपको क्या नंबर मिले 2 2 2, ये वाला ये वाला ये वाला, और उसके बाद 5 and 5, दैट इज 5 and 5, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, 2 जा 200, ये हमारे क्या हो गए टाइम फैक्टर्स। गेटिंग इट एवरीवन, एवरीवन आपको समझ में आया हमने यहाँ पर क्या किया, अगर नंबर ओड है तो हमने बार बार उसको mod 2 किया और हर बार 2 प्रिंट किया, और हर बार 2 प्रिंट करने के बाद उस नंबर को 2 से डिवाइड करते, उस नंबर को छोटा करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर ओड बना, हमने फॉर लूप ले लिया, और फॉर लूप हमने स्टार्ट किया 3 से, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आप क्या करो, अगला नंबर 3 प्रिंट कर दो और उस नंबर को 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपका जो वो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, तो अगला i का वैल्यू हो जाएगा 4। वापिस से चेक करो वो नंबर 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो वापिस चेंज करो एक और वैल्यू 5, अगर वो वैल्यू आपका 5 से डिविजिबल है तो क्या करो 5 प्रिंट कर दो, मतलब जो i का वैल्यू, और वापिस से वही 5 से उसको डिवाइड कर दो, अगेन चेक करो क्या वापिस डिविजिबल है। दिस इज हाउ यू हैव टू रिपीट दिस इज हाउ योर इटरेशन इज वर्क इन दैट केस। तो आपके जो प्राइम फैक्टर से 2 2 2 5 5 ये आपके प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, एवरीवन? यस सर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इस टाइप के डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, राइट। अगर आप एमएनसी में बैठ रहे हो, ये बिल्कुल रियल एमएनसी क्वेश्चन है, राइट। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे आप,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, बट जिस तरीके के मैंने आपको मेथडोलॉजी बताए हैं वही मेथडोलॉजी यूज करके आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर सर वेट 18. प्रीवियस स्लाइड दिखाइए सर, previous slide. Okay, this is previous slide. I will give you this solution, don't worry, ये PDF के फॉर्म में आपको पूरा स्लाइड मिल जाएगा. Okay, till the last session, after last session आपको ये complete PDF में solution के साथ देने वाला हूँ, so don't worry on it. Okay, yes. Now next कुछ क्वेश्चन आप पहले असाइनमेंट में करें, ये आप घर पे ट्राई करें, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टाइम कंज्यूम होता है, एंड दैट मच टाइम वी डू नॉट हैव इन अ वर्कशॉप इटसेल्फ, राइट. बट मैं आपको बेसिक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ कुछ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको क्या होगी, हेल्पफुल होने वाली, राइट. तो आई होप कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इधर वो क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा है, राइट. सर यस यस सर आप प्लीज एक पीडीएफ शेयर कर दीजिए ना इसकी, तो मतलब होमवर्क और अच्छे से हम लोग आगे पीछे भी देख पाएंगे, मतलब तो थोड़ा और बेनिफिट हो जाएगा. ओके, लेकिन अगर ये पीडीएफ शेयर करें तो हो सकता है आप अगला सेशन अटेंड ही नहीं करो, सब कुछ नहीं आपको सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर, वो पढ़ाने में अलग बात हो जाती है ना सर, Yes, आपको भी पता है कि हम लोग घर पे तो करेंगे नहीं, डोंट मतलब वरी, इसलिए. ये ऐसा करता हूँ, या तो मैं ये हाँ. जस्ट नोट कर लो, अभी तक के जितने क्वेश्चन है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूं, चलेगा क्या? सर एक काम करिए, आप कर दीजिए, हम लोग जब तक स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं, मतलब आप ओके, शेयर कर हाँ दीजिए तो हम लोग. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट वुड बी बेटर आई थिंक, करेक्ट. यस सर, हाँ तो मतलब फर्स्ट से लेके 22 तक आप बता दीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं. ओके 22 तक ले लो, बट मेरे पास हाँ और भी कुछ क्वेश्चन है, तो पहले आप आगे के ले लो, देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू बेट, राइट. तो ये ठीक है ऐसा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट. ओके सर. ये क्वेश्चन आपको लेने, आप सभी ने ले लिया है, कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस सर इसका ले लिया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 23. ये दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन जो आज तक के देने चाहिए वो मैं दे दूंगा. ओके, सो आपको इस बार जो है एक प्रोग्राम अगर इस टाइप का बनाना आ गया तो आपसे बाकी प्रोग्राम भी बन जाएंगे. क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर. क्या करना है आपको, एक सी प्रोग्राम लिखना है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का. मतलब अगर आपको 7 दिया है इनपुट में तो आउटपुट आना चाहिए 111. अगर आपको इनपुट दिया है 10 तो आपका आउटपुट आना चाहिए 1010. जल्दी से कर लेते हैं इसको, टाइम कंज्यूम नहीं करते. लेट्स से क्या लॉजिक आप अप्लाई करोगे? आपको पता है ना कि बाइनरी नंबर को डेसिमल या डेसिमल को बाइनरी में सर डिवाइड बाय 2, जो रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट करते जाएंगे. यस. सो लेट्स सी, मैं आपको इजीली सॉल्यूशन बता देता हूँ. सी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो भी नंबर है वो लेने वाले. लाइक हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है. सबसे पहले ड्राइवर पोर्ट, मतलब आपका मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, और जब यहाँ से मेन फंक्शन आपका स्टार्ट होगा तो इंट डेसिमल नंबर इक्वल टू 10. इनिशियली मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है कि मुझे 10 का ही क्या चाहिए, बाइनरी. जो भी नंबर आपको चाहिए आप यहाँ पुट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर n पुट कर सकते हो. तो यूजर से आप n का वैल्यू लेके उस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर बना सकते हो. राइट नाउ मैंने 10 लिया हुआ है, इसका पर्पस ये कि 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट मुझे रिक्वायर्ड है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ फंक्शन पे गया %d, और यहाँ पर ये जो है फाइंड डेसिमल नंबर, मतलब ये एक फंक्शन को ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में कि फाइंड डेसिमल नंबर का प्रोग्राम फंक्शन किधर डिक्लेयर है. इट इज गोइंग टू हियर, ये इधर जाएगा क्योंकि इधर इसके फंक्शन का डेफिनेशन है. तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, इफ डेसिमल नंबर इक्वल्स टू 0, दैट इज 10 इक्वल्स टू 0. ट्रू है क्या? नहीं, तो रिटर्न 0 नहीं करेगा. किस पार्ट पे जाएगा? एल्स पार्ट पे जाने के बाद ये क्या करेगा, डेसिमल नंबर मोड 2, मतलब डेसिमल नंबर आपका क्या है 10 मोड 2. 10 मोड 2 कितना हो जाएगा, what is the remainder? 0, correct? Plus 10 into plus 10 into find decimal divide by 2, मतलब अगला जो आपका फंक्शन कॉल होगा वो क्या होगा, find नंबर डेसिमल नंबर डिवाइड बाय 2. 10 by 2, 10 by 2 करेंगे तो क्या होगा 5. मतलब अब आपका अगला नंबर क्या कॉल हुआ, अगला नंबर आपका कॉल हुआ 5, करेक्ट. यहाँ पर आपका अगला फंक्शन क्या कॉल हुआ 5. नाउ अगला फंक्शन जब आपका 5 कॉल हुआ तो वापिस ये गया 5 इक्वल्स टू 0, फॉल्स. तो एल्स पार्ट पे गए. डेसिमल मोड 2, मतलब इस बार 5 मोड 2 आप करोगे तो 5 मोड 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, और 5 मोड 2 पे आपको 1 मिलेगा, प्लस 10 इंटू फाइन
डेसिमल नंबर डिवाइड बाय 2, आपका डेसिमल नंबर क्या है 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, करेक्ट। 5 डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा 2। नाउ अगली बार क्या करोगे आप, चेक करोगे 2 इक्वल्स टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, अगेन इट इज फॉल्स, तो एल्स पे जाओगे। डेसिमल नंबर मॉड 2 दैट इज 2 मॉड 2 कितना मिला 0, 0 प्लस 10 into find number, find 2 that is find decimal divide by 2, 2 divide by 2 is nothing but 1। अभी इस बार आपका 10 into 1 कॉल हुआ, और जैसे ये 1 कॉल हुआ तो आपको क्या होगा 1 इक्वल्स टू 0, अगेन ये फॉल्स हो गया, राइट। तो फॉल्स हो गया तो एल्स डेसिमल डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 mod 2, अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। 1 mod 2 क्या होगा 1 होगा, तो 1 हो गया, एंड प्लस 10 into find decimal 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो इट इज गोइंग टू रिटर्न 0, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द सीक्वेंस, यू कैन सिंपली सी दैट 1 then 0 then 1 and then 0, राइट। ये जो सीक्वेंस है आपका ये प्रिंट हो जाएगा, कौन सा सीक्वेंस 1 0 1 0, जो कि बाइनरी इक्विवेलेंट है 10 का, राइट। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द लॉजिक, द क्रक्स ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम इज दिस। ये फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन के अंदर ये डेफिनेशन है, और जो मेन लॉजिक है हर बार उस नंबर को 2 से मोड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप ऐड करोगे 10 into find decimal number by 2। ये 10 इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर यहाँ पर 10 था। अगर ये आपका कोई भी n है, आप यू कैन डिक्लेयर, डेसिमल की बात हो रही है, डेसिमल टू बाइनरी, तो हमने 10 बेस जो होता है डेसिमल का वो 10 होता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द प्रोग्राम। क्लियर है ये वाला प्रोग्राम सभी को, कि आपको कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स टेक स्क्रीनशॉट। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। ओके यस सर। ओके, यू जस्ट से टेकन, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। ओके सर, ओके सर। डन, सर ले लिया है। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 24, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल। इस बार आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दिस इज द एल्गोरिथम, दिस इज द अप्रोच। ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आपने डेसिमल का बेस 10 लिया था, बाइनरी का बेस 2 होता है। हेक्साडेसिमल आ जाएगा तो बेस कितना हो जाएगा 16, ऑक्टल आ गया तो बेस कितना हो जाएगा 8। आपको सिर्फ बेस पे फोकस करना है, राइट, एंड एवरी अदर थिंग इज रिमेन सेम। ये इसका सॉल्यूशन है, यू कैन टेक द सॉल्यूशन नाउ। टेकन सर एक सेकंड। ओके, यस सर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, इसका वर्किंग है। इफ यू वांट टू टेक इट डिटेल में पढ़ने के लिए आपको आसानी होगी, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। फॉर दिस वन आल्सो, बट डोंट वरी, ये वाला पूरा पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगा ना, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर पहले नहीं मिल सकता सर, थोड़ा सा मतलब मदद हो जाती। जस्ट अ सेकंड, कैसे मैं कैसे सेंड करूंगा, मेरे पास आपकी ईमेल सर आईडी। मैं आपको जीमेल देता हूँ अपना, तो नहीं, आप फिर मेरे को बाकी सेंड कर स्टूडेंट्स दीजिए। को कैसे करेंगे? मैं भेज दूंगा ना सर, वो मैं देख लूंगा। आप कनेक्टेड हो सभी, इधर नहीं भेज हाँ सकते? हाँ, सभी से सभी से मैं दे दूंगा, सबको दे दूंगा, सबके ब्रांच के एक एक बच्चे को दे सर दूंगा। आप प्रभाकर सर को सेंड कर दीजिए, वो सर प्रभाकर सर देते नहीं है एक्चुअली, तो सर अच्छा। आप मेरे को दे दीजिए, मैं सबको दे दूंगा ना, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके, डोंट वरी। ये आप यहाँ तक क्वेश्चन पहले नोट कर लें सभी, असाइनमेंट क्वेश्चन 25 से 32। यस सर, डन। डन, नेक्स्ट। यस। इट इज डन। यस सर। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट काम करता हूँ, है ना। डोंट वरी, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट अ सेकेंड। Sir, please provide the recording link of this session. Sure. At the last, we will provide all the recording links, right? So don't worry about that. Okay, sir. आपको Thank you. मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, है ना, आप वेट करो। आपको क्या करना है, ओके, ये 40 क्वेश्चंस तक आप सभी को असाइनमेंट में बनाने हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव यू द बेटर वे।
जस्ट अ सेकेंड है ना, आप 2 मिनट वेट करो, सबके लिए बेस्ट काम होने वाला है, 2 मिनट। ओके सर।